Class 6th, our past textbook in history. Chapter number 4, What Books and Burials Tell Us. Mary in the library. As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. यानी जैसे घंटी बजी, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि मेरे साथ चलो क्योंकि वो पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. तो जब मैरी अंदर घुसी तो उसे दिखा कि ये तो क्लासरूम से भी बड़ी है. And there were so many shelves, all full of books. और बहुत सारे shelves थे जो books से भरे हुए थे. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teachers say that cupboard has very special book on different religions. तो उसने कॉर्नर में कबर्ड रखा हुआ देखा जिसमें कुछ बहुत मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी. तो वो उसे खोलने की कोशिश करने लगी तो उसकी टीचर ने कहा इस कबर्ड में बहुत स्पेशल किताबें हैं जो अलग अलग धर्मों के ऊपर हैं. डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास? व्हाट आर द वेदास? मैरी वंडर. लेट अस फाइंड आउट. तो टीचर बोलती है कि क्या तुम्हें पता है वेदास का भी हमारे पास एक सेट है. तो मैरी सोचने लगी कि ये वेदास होते क्या है. लेट अस फाइंड आउट. One of the oldest books in the world. You may have heard about the Vedas. There are 4 of them: ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ये बहुत पुरानी बुक्स हैं जिनमें से 4 हैं: ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. The oldest Ved is the ऋग्वेद, composed about 3500 years ago. The ऋग्वेद includes more than 1000 hymns, यानी इसमें 1000 से भी ज़्यादा जो हमारे श्लोक होते हैं वो लिखे हुए हैं जिनको शुक्त और वेल सेड कहा जाता है. These hymns are in praise of various gods and goddess, यानी इनको बहुत सारे भगवानों के प्रेज में यानी तारीफ करते हुए लिखा गया है. 3 gods are especially important. 3 gods हमारे लिए बहुत important है. अग्नि, the god of fire; इंद्र, a warrior god; and सोम, a plant from which special drink was prepared. ये 3 बहुत ज़्यादा special और important थे. These hymns were composed by sages, यानी ये ऋषियों के द्वारा लिखी गए हैं. Priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. और जो भी वहाँ पर पुजारी थे वो उनके जो भी शिष्य होते थे उन्हें सिखा देते थे एक जैसा याद करना. Most of the hymns were composed, taught and learned by men, यानी कि ये लिखे भी हमारे द्वारा थे, हम ही इन्हें पढ़ाते थे और हम ही इन्हें याद भी रखते थे. A few were composed by women. ऋग्वेद is in old or Vedic Sanskrit, from which is different from Sanskrit you learn in school these days. यानी जो ऋग्वेद है वो पुरानी संस्कृत में लिखा हुआ है जो अभी की संस्कृत से अलग है. संस्कृत and other languages. संस्कृत is a part of a family of languages known as Indo-European. यानी ये बहुत सारी languages की family जिसमें से एक संस्कृत है जिसे Indo-European कहा जाता है. Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi. Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. यानी पूरे वर्ल्ड की जो अलग अलग languages हैं वो सब इसमें आ जाती हैं. They are called a family because they originally had words in common. यानी कि ये सब family है क्योंकि इनमें कुछ words हैं जो common है, जैसे कि मात्र संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर इंग्लिश में. Do you notice any similarity? Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, these used in Northeast belong to the Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belong to the Dravidian family. And the language spoken in Jharkhand, parts of central India belong to the Austroasiatic family. ठीक है, तो ये अलग अलग families से belong करती हैं, अलग अलग जैसे जैसे बोली जाती हैं. The books we use are written and printed, यानी ये सब written है, printed है. जो ऋग्वेदा थे वो recited थे और heard किए जाते थे, यानी कोई सुनाता था और सब बैठकर सुनते थे उन्हें पढ़ने से ज़्यादा. It has written down several century after it was first composed and printed less than 200 years ago. यानी कि ये बहुत centuries पहले लिखा जा चुका है, उसके भी पहले इसे बता दिया गया था और कुछ समय पहले ही हम लोगों ने इसे प्रिंट करवाना स्टार्ट करा है. How historians study the Rigved. Historians like archaeologists find out about the past, but in addition to the material remains, they examine written sources as well. यानी कि वो past के बारे में तो पता करते ही हैं, उसके साथ जो written sources हैं उनको भी पढ़ते हैं. Let us see how they study the Rigved. Some of the hymns in the Rigved are in the form of dialogue. This is the part of one such hymn, the dialogue between sage named Vishwamitra and 2 rivers, Bees and Sutlej, and they were worshipped as goddess.
यानी कि यहाँ पर एक पार्ट दिखाया गया है ऋग्वेद का, जिसमें विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में बातचीत चल रही है। ये ऊपर इसका पिक्चर दिया हुआ है और नीचे उन्होंने लिख कर बताया है। O rivers, come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves। यानी कि ये जो नदियाँ हैं ये माउंटेन से उतर कर ऐसे आती हैं जैसे कोई तेज़ घोड़ा हो, या फिर दो चमकती हुई गाय हैं जो अपने बच्चों को चाट रही हैं। You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another। यानी तुम रथ के जैसी सी से चलती हुई आती हो, तुम में इंद्र की शक्ति है और तुम पानी से भरी हुई हो और आपस में जुड़ना चाहती हो। The rivers, we who are full of water, move along the path of gods have made for us. Once we start following, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? तो नदियाँ कहती हैं हम पानी से भरे हुए हैं, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है, और हम एक बार बहना शुरू करते हैं तो हम रुकते नहीं हैं। तुम हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो, जो सेज यानी कि ऋषि। विश्वामित्र, Oh sisters, please listen to me, the singer who has come from a distance with his chariots and cart. Let your water not rise above our axles so that they can cross safely। यानी वो कहता है बहनों कृपया मेरी बात सुनो, एक गायक बहुत दूर से आया है और उसके जितने भी रथ हैं और जितने भी कार्ट्स हैं वो सब खड़ी हैं। कृपया ये ध्यान रखना कि तुम्हारा पानी उसके ऊपर ना बढ़े ताकि वो सेफली नदी को क्रॉस कर जाए। We will listen to your prayer so that you can cross safely। यानी हम तुम्हारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे ताकि तुम सेफली पहुंच जाओ। Historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. They also suggest that the sage lived in a society where horses and cow were valued animals. That is why rivers are compared to horses and cow। यानी कि इससे हिस्टोरियंस को पता चला कि ये उस समय में लिखा गया होगा जब नदियाँ बहती होंगी, और उसने ऋषि भी ऐसी सोसाइटी में रहता था जहाँ गाय और घोड़ों को बहुत वैल्यू करा जाता था, और इसलिए नदियों का कंपैरिजन किसी घोड़े या किसी गाय से करा गया है। डू यू थिंक कैरियट्स वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट? क्या आपको लगता है रथ भी इम्पॉर्टेंट होते थे? हाँ, रथ इम्पॉर्टेंट होते थे क्योंकि उस समय में राजा महाराजा हुआ करते थे। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड द अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हाइम्स। यानी कि बाकी नदियाँ जो हैं जैसे सरस्वती, इंडस, गंगा, यमुना, इन सब का भी नाम लिया गया। गंगा यमुना का नाम भी एक बार उसमें लिया गया है। कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियट्स। देर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, यानी भेड़ बकरी, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स, बच्चों के बारे में जिनमें स्पेशली बेटों के बारे में प्रेयर करी जाती थी, एंड हॉर्सेस यानी घोड़े। हॉर्सेस वर योक्ड टू कैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल। यानी कि जो घोड़े थे उन्हें रथ में आगे बांध लिया जाता था जिससे लड़ाइयाँ और युद्ध लड़े जाते थे। Battles were also fought for land which was important for pasture, for growing hardy crops that ripened quickly such as barley. Some battles were fought for water and to capture people। यानी युद्ध अलग अलग चीज़ों के लिए लड़े जाते थे, कई बार वो ज़मीनों के लिए लड़े जाते थे, क्रॉप्स उगाने के लिए लड़े जाते थे, या फिर कैटल्स इकट्ठा करने के लिए लड़े जाते थे। Some of the wealth that was obtained was kept बाय द लीडर्स, यानी कुछ जो वेल्थ इकट्ठी होती थी वो लीडर्स रख लेते थे, कुछ पुजारियों को दे दी जाती थी और बची हुई लोगों में बांट दी जाती थी। कुछ जो वेल्थ थी वो यज्ञ करने के लिए, सैक्रिफाइसेस यानी बलि देने के लिए यूज़ करी जाती थी, जिन्हें ऑफरिंग माना जाता था और इन्हें आग में डाल दिया जाता था। माना जाता था कि ये भगवान और गॉडेस के लिए होता है, देवी देवताओं के लिए, और इसमें घी, अनाज और कुछ केसेस में जानवरों की भी बलि दी जाती थी। Most men took part in this war. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matter of war and peace. They were to choose leader who often have brave and skillful warriors। यानी कि बहुत सारे लोग युद्ध में भाग लेते थे, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, पर लोग डिस्कस करके किसी लीडर चुनना है सोच लिया करते थे जो थोड़ा बहादुर हुआ करता था। Words to describe people। There were several ways of describing people। लोगों को डिस्क्राइब करने के अलग अलग तरीके थे, जैसे कि क्या काम वो करते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, किस जगह से वो आए हैं, उनकी फैमिली क्या है, कम्युनिटी क्या है। तो कुछ हम देखते हैं वर्ड्स, जैसे कि देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। एक होते हैं प्रिस्ट, जिन्हें ब्राह्मण बोल दिया जाता है, जो वेरियस रिचुअल करते हैं, और दूसरे होते हैं राजा। द राजा वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लैटर। They did not have capital city palaces or armies. They did not collect taxes. Generally, son did not automatically succeed father as Raja. Read the previous section one more and see whether you can find out what Rajas did. Two words were used to describe the people or the community as a whole. The one was for Jan,
which we still use in Hindi and other languages. The other was wish. The word wish come from wish, जिसके बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे. Several wish or jana are mentioned by name. So we find reference by Purujan or wish, the Bharat Jan or wish, or Yadu Jan or wish, and so on. Did you know any of these sound familiar? Sometimes the people who composed the hymn described themselves as Aryas and were opposite to Dayasas. They were the people who did not perform sacrifice and probably spoke different languages. यानी कि ये बलि नहीं दिया करते थे, दूसरी लैंग्वेज में बात करते थे. फिर एक टर्म आया दास, जिसका फेमिनाइन था दासी, जिसका मतलब हुआ करता था स्लेव यानी नौकर. स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, यानी इन्हें पकड़ के लाया जाता था किसी युद्ध में और इन्हें अपनी प्रॉपर्टी जैसे रखा जाता था. ठीक है, जैसे हमने इन्हें खरीदा हो और जो भी हम काम चाहते थे ये करते थे. While the Rigved was being composed in the northwest of subcontinent, there were some other development elsewhere. Let us look at some of these. यानी कि जब ऋग्वेद यहाँ लिखा जा रहा था तब दूसरी जगह पर भी कुछ काम चल रहे थे, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Silent Sentinels, the story of megaliths. Look at the illustration on the next page. These stone boulders are known as megaliths, literally big stones. यानी कि जो इस टाइप के stones होते हैं बड़े बड़े, जो यहाँ पे दिया हुआ है, इन्हें हम megaliths बोलते हैं. मेगालिथ्स बोला जाता है. तो जब ये स्टोन्स वहाँ पर हुआ करते थे, दीज वर्क वेरी केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स. यानी कि इन्हें बहुत केयरफुली लगाया जाता था और बताया जाता था कि यहाँ पर किसी की बरियल साइट है, यानी यहाँ किसी को गाड़ा गया है. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in North East and Kashmir. यानी इन सब जगह पर ऐसे मेगालिथ्स बनाए जाए जाते थे. Some important megalithic sites are shown on map 2. While some of the megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. यानी कभी कभी surface के साथ साथ underground भी हुआ करते थे. Sometimes archaeologists find a circle or stone boulder or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burial beneath. यानी इनका मतलब यही होता है कि नीचे कुछ गड़ा हुआ है. There were several things that people did to make megaliths. We have a list here. Try and arrange them in a proper. डिगिंग पिट्स इन द अर्थ यानी गड्ढा करना, फिर स्टोन ट्रांसपोर्ट करना, बोल्डर्स तोड़ना, स्टोन्स को पोजीशन पे रखना, सूटेबल स्टोन ढूंढना, उनको शेप करना और डेड को बरी करना. इनको आपको एक अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में. All these burials have a common feature. Generally the dead were buried with some distinctive pot which are called black or red ware. यानी कि जो मर जाते थे उन्हें गाड़ा जाता था कुछ मटकों के साथ में जो या तो ब्लैक या रेड होते थे. वहाँ पर टूल्स भी मिले हैं, आयरन के वेपन्स मिले हैं, बहुत बार स्केलेटन मिले थे घोड़ों के या घोड़ों की इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड. क्या हरप्पन सिटीज़ में आयरन यूज़ करा गया था? हमने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है. Finding out about social differences. Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि जो भी चीज़ें उसके साथ मिलती थी वो उसी की होती थी, जो भी डेड पर्सन था. Sometimes more objects are found in one grave than in another. यानी कि बहुत सारी जो कब्र होती है उनमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shells. यानी कि इसके साथ में कितनी सारी चीज़ें थी. Other skeletons have only a few pots. These suggest that there were some differences in the status among the people who were buried. यानी कि जिन्हें गाड़ा गया है, जिनकी कब्र बनाई गई है, कुछ उनमें से अमीर होते थे तो उनमें ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, कुछ गरीब होते थे, कुछ चीफ्स होते थे और कुछ फॉलोवर्स. Where some burial spot mean for certain families. Sometimes megaliths contain more than one skeleton. यानी इसका मतलब होता था कि एक जैसी फैमिली के लोगों को एक साथ बरी करा गया है, सेम जगह में, सेम टाइम पर नहीं. द बॉडीज हु वर डाइड लेटर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू पॉट होल्स, स्टोन सर्कल्स और बोल्डर प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व्ड एज अ साइन पोस्ट टू फाइंड बरियल साइट सो दैट द पीपल कैन रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू. यानी वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें रख दी जाती थी या जो साइन के जैसा काम करती थी कि हाँ ये आपकी कब्र बनाने की जगह है, ताकि जब लोग वापस आए तो उन्हें सेम जगह मिल जाए. A special barrier at Inamgaon. Find Inamgaon in map 2. It is a site of river Ghat, a tributary to the Bhim. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head outward the north. यानी यहाँ जो बड़े लोग होते थे उन्हें जनरली ग्राउंड में बरी करा जाता था सीधा लिटाकर, और उनका हेड नॉर्थ साइड में होता था. कभी कभी बरियल्स हाउसेस के अंदर कर दिए जाते थे जिनमें
खाने पीने के सामान के साथ पानी वेसल्स में रखा जाता था. वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4 leg क्ले जार इन अ कोर्टयार्ड ऑफ 5 roomed हाउस. यानी कि एक 5 कमरे के घर में एक आदमी बरीड मिला था. क्ले जार था उसके अंदर बहुत सारा, और एक कोर्टयार्ड यानी बालकनी जैसा एरिया भी उसके साथ में था. इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड ग्रैनरी. यानी यहाँ पर ग्रैनरी भी थी जहाँ ग्रेन्स रखे जाते थे. द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन. What skeletal studies tell us? ये क्या बताती है हमें skeletal studies? It is easy to make out the skeleton of a child from its small size. यानी कि अगर किसी बच्चे का skeleton या शव है तो हम उसे जल्दी पहचान सकते हैं क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है. However, no major differences in bone of girl and a boy. Can we make out whether a skeleton was of a man or a woman? यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये मैन की है या वुमेन की. किन चीज़ों से पता चलता है? समटाइम पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस व्हाट इज़ फाउंड इन द स्केलेटन. जैसे कि अगर स्केलेटन पे कुछ ज्वेलरी मिलती है तो वो वुमेन की हो सकती है, क्योंकि कभी कभी मेन भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, इसलिए ये एक प्रॉब्लम है. तो इसका बेटर वे फिगरिंग आउट क्या था? द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज़ जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग. यानी बोन स्ट्रक्चर देख के पता लगा सकते हैं. जो कमर का एरिया होता है वो वुमेन का यूजुअली बड़ा होता है. These distinctions are based on modern skeletal studies. About 2000 years ago, there was a famous physician named Charak who wrote a book on medicine known as Charak Samhita. There he states that the human body has 360 bones and is much larger number of 200 bone are recognized in modern anatomy. Charaka arrived at this figure by counting the teeth, joint and cartilage. यानी कि ये हमारे टाइम के बहुत फेमस फिजिशियन थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी के बारे में लिखी थी. उनमें से कुछ चीज़ें इन्होंने बोन्स के बारे में लिखी थी और वो इस काउंटिंग पर पहुंचे थे टीथ, जॉइंट और कार्टिलेज को काउंट करके. ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, बीज एंड सीसम. यानी वहाँ पर बहुत सारे गेहूँ, बाजरा, ज्वार, राइस, दाल और इन सब के बोरे मिले हैं. सीड्स मिली हैं. बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स हैव बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव ऑल्सो बीन फाउंड. यानी बहुत सारे एनिमल्स की बोन जो कटी हुई मिली है, जिससे पता चलता है कि एनिमल्स को भी खाया जाता होगा. बफेलो, गोट, शिप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटेलोप, हेयर एंड मोंगलूज. बिसाइड्स इसके अलावा और क्या मिलता था? बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब्स एंड फिशेस. यहाँ पर फ्रूट्स भी मिले हैं जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड. यानी यहाँ पर ये लोग फ्रूट्स वगैरह भी इकट्ठा करा करते थे. एल्सवेयर. फाइंड चाइना इन योर एड्रेस. Around 3500 years ago, we find some of the first evidence of writing in China. यानी वहाँ पर written evidences मिले थे. These writing one और animal bones, animals की हड्डियों पे लिखी हुई ये चीज़ें मिली थी जिन्हें oracle bones बोला जाता था क्योंकि ये फ्यूचर बनाने का काम करती थी. किंग इन बोन्स पर लिखा करते थे कि क्या हम ये युद्ध जीत जाएंगे, क्या इस साल खेती अच्छी होगी, क्या मुझे बेटे होंगे. और फिर इन बोन्स को फायर में पटका जाता था और ये क्रैक करती थी हीट की वजह से. और जो फॉर्च्यून टेलर थे वो क्रैक्स को पढ़ के बताते थे कि फ्यूचर क्या होगा, और कभी कभी ये गलतियाँ भी करते थे. ये किंग पैलेसेस यानी राजमहलों में रहते थे. बहुत इनके पास वेल्थ थी, बहुत लार्ज आर्मी हुआ करती थी, बहुत सारे बर्तन हुआ करते थे, लेकिन इन्हें आयरन का कोई भी इस्तेमाल नहीं पता था.